hypotenuse. How do we define cos theta? Cos theta is defined as base upon hypotenuse. Then how we define as tan theta? Define tan theta. We define tan theta as perpendicular upon base. At the same time, है ना, ये बेसिक आइडेंटिटीज है जो कि शायद तुम लोगों ने स्कूल में पढ़ा है, जैसे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट? तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का प्रूफ यहाँ पे मैंने in terms of the regular and hypotenuse and base and hypotenuse. And then finally, by using Pythagoras theorem, we are getting sin square theta plus cos square theta equal to 1, right? So तो जो आई थिंक होपफुली ये जो पहले स्लाइड में जो भी है तुम लोगों को समझ में आ गया होगा ना, एंड स्पेशली जिसका आज पहला क्लास है दे कैन टेक द स्क्रीनशॉट, है ना, दे कैन टेक द स्क्रीनशॉट. गुड इवनिंग सृष्टि बेटा, ठीक है? तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. तो जिन लोगों का आज पहला क्लास है ना वो लोग आज है ना इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. दे कैन टेक द स्क्रीनशॉट हियर. राइट स्टूडेंट्स? नेक्स्ट इज I'll go to the next slide. Then I had discussed some more relation, है ना? I'll repeat it again. जिन लोगों के पास नोट्स नहीं है, कल का नोट्स नहीं लिया है ना, तो वो लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो. You can take the screenshot. Right? This is what we had discussed again. Like tan plus 1 equal to sec square theta, है ना? एंड मैंने यहाँ पे मतलब है ना कुछ और आइडेंटिटीज के बारे में यहाँ पे रिवील किया था. लाइक sec theta is 1 by cos theta, है ना? cosec theta is inverse of reciprocal of sin theta. cot theta is reciprocal of tan theta. ठीक है बच्चों, है ना? तो यहाँ पे और कुछ आइडेंटिटीज मैंने डिस्कस किया था, जैसे कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, है ना, ये एक पार्ट है. tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 6, ठीक है? एंड सिमिलरली cot square theta plus 1 is equal to cosec square theta. Cot square theta basically is inverse of tan theta, and cosec theta is again reciprocal of sin theta, right? Okay. So if you have taken the screenshot, then I can go to the next page, है ना? तो next page ये so this is the next slide here again, where basically I had discussed about certain relationship, certain formulas, like ये sin a plus b, sin a cos b plus cos a sin b, है ना? sin a minus b, है ना? sin a minus b, है ना? जैसे कि sin a minus b is, ठीक है ना, जैसे कि हमने कल पढ़ा था इसके बारे में, है ना, ये sin a plus b which is equal to sin a plus b, right? sin a plus b equal to sin a into cos b plus cos a into sin b. Again sin a minus b is sin a into cos b minus cos a into sin b. At the same time cos a plus b, that is equal to cos a into cos b minus sin a into sin b. ठीक है ना? Then again at the same time
cos A minus B is cos A cos B plus sin A into sin B, right? So once again we can discuss some other formulas, है ना, जैसे कि sin C plus sin D है. Sin C plus sin D was like 2 sin C plus D by 2 whole multiplied with cos of C minus D by 2. Sin C minus sin D क्या है? That is 2 cos C plus D by 2 into sin of C minus D by 2, है ना? और cos C plus cos D, 2 cos C plus D by 2 into cos of C minus D by 2. Again, cos C minus is equal to minus 2 sin C plus D by 2 into sin of C minus D by 2. ठीक है ना? So these are the basic formulas that we studied yesterday. तो जिन लोगों के पास नोट्स नहीं है ना, आई रिपीट अगेन, दे कैन एक्चुअली टेक स्क्रीनशॉट. तो वो लोग, है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट? सो आई लाइक टू ask all the participants please to write their name, right, to have their name in their IDs. Like I can see something called 184989689. If the name is mentioned, it would be better. It would be less confusing. ठीक है बच्चों, है ना? Can I go to the next slide now? Yes, students. Can I go to the next slide now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. So this is what I discussed yesterday. Finally, that relation between sine and cos. See here, you can see this table over here. You can see this table over here. Here I have discussed about sine and cos relation in terms of theta. Like sine 90 minus theta is cos theta. Sine 90 plus theta cos theta. Sine 180 minus theta is sine theta. Sine 180 plus theta is minus sine theta. Huh? And cos of 90 minus theta is sine theta. Cos 90 plus theta is minus sine theta. Cos 180 minus theta जो है that is minus cos theta, and cos 180 plus theta is minus cos theta. तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, we will proceed from here. So today basically we will all proceed from this place, है ना? हम यहाँ से अभी proceed करेंगे हम लोग. ठीक है, आगे, है ना? So hopefully यहाँ तक सब लोगों को समझ में आ गया होगा. ठीक है? So that now we can proceed and discuss some more concepts. ठीक है बच्चों? So basically I can say that, let's say sine basic formulas मैं बता दूंगा अभी तुमको. Let's say if I want to, let's say I know that sine of a plus b, ये जो फॉर्मूला है that is sin a into cos b plus cos a into sin b, है ना? ये फॉर्मूला जो है that is sin a cos b cos a sin b, है ना? बहुत बहुत इजी है इसको याद रखने का. ठीक है? और जितना हम लिखते जाएंगे इसको ना, we keep on writing it continuously,
ठीक है, थोड़ा बहुत राइटिंग प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत अच्छे से याद रह जाएगा, है ना। और साइन ए माइनस बी में क्या है कि सेम एक्सप्रेशन है, बस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। मतलब अगेन यू हैव टू टेक साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, लेकिन उनके बीच में एक माइनस साइन आ रहा है बस, कॉस ए साइन, समथिंग लाइक दिस। और हमें पता है कि जो कॉस ऑफ ए प्लस बी है, कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू लेट्स से कॉस ए कॉस बी, है ना, माइनस साइन ए साइन बी। एट द सेम टाइम कॉस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, है ना। अब कॉस ए प्लस बी में क्या हो रहा है कि कॉस कॉस साइन साइन साथ में आ रहे हैं। साइन ए प्लस बी में क्या है, साइन और कॉस और साइन कॉस दोनों एक्सप्रेशन में रहते हैं ना। लेकिन जब हम कॉस ए प्लस बी या फिर कॉस ए माइनस बी लेते हैं तो वहां पे कॉस ए इंटू कॉस बी, मतलब दो कॉस के दो टर्म साथ में रहते हैं ना, साइन के भी दो टर्म साथ में रहते हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और ए माइनस बी में क्या होगा, अगेन कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस माइनस की जगह आ जाएगा प्लस, है ना, प्लस ऑफ साइन ए इंटू साइन बी। तो इसको आई वी कैन एक्चुअली रिफर दिस, इसको रिफर करके हम tan a प्लस बी डिराइव कर सकते हैं ना। अगर मैं बोलूंगा इसके हेल्प से मुझे अभी tan a प्लस बी आई वांट टू फाइंड आउट, तो हम लोग tan a प्लस बी भी आराम से यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि आई कैन राइट tan ऑफ a प्लस बी दैट इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। सॉरी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना, इसको डायरेक्ट नहीं लिखे हम। tan इज एक्चुअली रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस। tan थीटा बेसिकली जो है ना, हम इसका हेल्प लेंगे अभी। tan थीटा जो है वो साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो है, साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो होता है tan थीटा, ठीक है ना। तो tan a प्लस बी क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस बी बाय कॉस ऑफ a प्लस बी। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए यस प्लस सर। बी बाय कॉस ऑफ ए प्लस बी। आप देखो, है ना, ऊपर देखो मैंने साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी सबका फॉर्मूला लिख के रखा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबका फॉर्मूला यूज कर लूंगा, ठीक है ना। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना, होल डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी इज लाइक कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है ना। तो ये हो गया कॉस ए प्लस बी। अब ये पूरे फॉर्मूले में व्हाट आई विल डू इज आई विल डिवाइड कॉस ए कॉस बी, ये जो टर्म है आई विल डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मैं कॉस ए कॉस बी डिवाइड कर लूंगा। लेट्स से साइन ए कॉस बी, है ना, प्लस कॉस ए साइन बी होल डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉस बी, ठीक है ना। तो और डिनोमिनेटर में भी वही डिवाइड करना पड़ेगा मुझे अभी, कॉस ए कॉस बी, है ना, माइनस साइन ए साइन बी होल डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉस बी, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस ए कॉस बी डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब इससे मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, इम्प्लाइज tan ऑफ, तो इसका ये मतलब है ना, तो इसका ये मतलब है कि मेरे पास जो tan ऑफ ए प्लस बी है दैट इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पे साइन ए कॉस बी और कॉस ए कॉस बी, ना हर चीज पे मैंने कॉस ए कॉस बी डिवाइड करके रखा है, ठीक है। तो एक तो आएगा यहाँ पे साइन ए
बाय कॉस ए, न्यूमरेटर में पहला टर्म आएगा साइन ए बाय कॉस ए प्लस सेकेंड टर्म मुझे क्या मिलेगा, कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो सेकेंड टर्म में मुझे मिलेगा साइन बी बाय बी, है ना, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कॉस बी जो पहला वाला टर्म वो हो जाएगा 1 माइनस सेकेंड टर्म बिकम्स, सेकेंड टर्म को मैं ऐसे ही रखूंगा ना, साइन ए साइन बी बाय कॉस ए इंटू कॉस बी, सो दैट इज इक्वल टू ना, तो दैट इज इक्वल टू जो साइन ए बाय कॉस ए का रेशियो है, आई कैन राइट इट एज tan ए, है ना, प्लस साइन बी बाय कॉस बी रेशियो है, दैट इज tan बी होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस पहले जो मतलब साइन ए बाय कॉस ए रेशियो इट कैन बी रिटन एज tan ए, और नेक्स्ट जो साइन बी बाय कॉस बी है उसके प्रोडक्ट में है, कैन बी रिटन एज tan बी, ठीक है ना, तो ये आ गया tan ए प्लस बी का फॉर्मूला, ठीक है, सो tan ए प्लस बी का फॉर्मूला फाइनली हमने कितना मतलब डिराइव किया, व्हाट वी डिराइव्ड एज द फॉर्मूला ऑफ tan a प्लस b, दैट इज tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है ना बच्चों, दैट इज, तो ये tan a प्लस b का फॉर्मूला मिला मुझे यहां से, दिस इज व्हाट आई गेट आउट ऑफ tan a प्लस b फॉर्मूला, है ना, दैट इज tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b होल इंटू 1 माइनस tan a इंटू tan b, है ना बच्चों, बच्चों क्या ये सबको समझ में आ गया, है ना, सौरभ, सृष्टि बेटा, यस सर। ओके वेरी गुड, सताक्षी एंड ठीक है ना, सताक्षी बेटा तुमको समझ में आ गया बेटा, Yes, sir. am I audible, students, am I audible to you, Yes, sir. Yes. ओके, हेलो सोनालिका, ठीक है ना, ओके, so now if you understood this, Sonalika, since you joined late, can you take the screenshot बेटा इसका, है ना, सोनालिका एंड दीक्षा, ठीक है ना बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले जाओ ना, सताक्षी एंड सृष्टि, आई थिंक दे हैव रिटन इट, ठीक है, तो थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट लेना, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, once you take the screenshot please confirm, next I'll discuss formula of tan a minus b, जैसे ही tan a प्लस b लिया, tan a माइनस b सेम फॉर्मूला होगा, बस प्लस के जगह माइनस,
Just a minute, students. Am I audible? Yes, sir. Now. Dear students, am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So tan A minus B is basically tan A minus tan B Sir, your voice is not audible. Is it audible? Okay. So similarly tan A minus B जो है, जैसे कि tan A plus B का फॉर्मूला लिखा था, tan A plus tan B whole divided by 1 minus tan into tan B. Similarly tan A minus tan B जो है, tan of A minus B can also be written as tan A minus tan B, can also be written as tan A minus whole divided by 1 plus tan A into tan B. Right? So this is another formula. Okay, students, ये समझ में आ गया? Yes, sir. This part understood, no? This is understood, right? Okay. Now we'll move to some formulas like sine of 2 theta and sine 2 theta, cos 2 theta and tan 2 theta. There again some basic formulas like sine 2 theta, cos of 2 theta and tan of 2 theta. ठीक है ना? So for sine 2 theta you can again break it into like sine of theta plus theta. So if we want to derive sine of 2 theta, अगर हमको sine of 2 theta derive करना है, right, then sine 2 theta can be written as sine of theta plus theta. ठीक है ना? ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है ना? तो साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा लिखे ना, जो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ना, इसको यूज कर सकते हैं ना, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी. ठीक है ना? तो ये जो साइन थीटा प्लस थीटा है, आई कैन राइट इट एज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा. ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया? स्टूडेंट्स है ना, यहां तक समझ में आ गया Yes, ना sir. आपको? एवरीवन अंडरस्टूड टिल नाउ? Yes, sir. Okay. Okay, what about the new entrants like Sonalika, Srishti, है ना, शमाबी, दीक्षा? बच्चों यहाँ तक समझ में आया ना? Right? Can I get some reply from Sonalika or Diksha? Can you all reply me? शमाबी, सताक्षी, सृष्टि, सोनालिका. बच्चों क्या तुम लोग मुझे रिप्लाई कर सकते हो? तुम लोग को सुनाई दिया?
मतलब समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, थैंक यू। तो साइन टू थीटा है ना, विच इज साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा ना। तो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा जो है, आई कैन राइट थीटा एज टू टाइम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, है ना। साइन ऑफ इज इक्वल टू टाइम साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये एक फॉर्मूला है साइन टू थीटा का। सिमिलरली है ना, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करके वी कैन डिराइव, है ना, फॉर्मूला ऑफ कॉस थीटा। फॉर एग्जांपल, इफ आई डिराइव फॉर्मूला ऑफ कॉस टू थीटा, ठीक है ना। तो कॉस टू थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा प्लस, ऐसे लिख सकते हैं ना, कॉस टू थीटा को थीटा प्लस टू थीटा को हम थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा लिख के, ये जो कॉस ए प्लस बी वाला फॉर्मूला है ना, यहाँ कर सकते हैं ना, दैट इज कॉस ई माइनस साइन इंटू साइन। तो इसको जब हम यूज करेंगे फॉर्मूला को, देना कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है बच्चों, है ना। सो दैट इंप्लाइज कॉस टू थीटा जो है, ये फॉर्मूला है कॉस माइनस साइन स्क्वायर। यहाँ पे जो फॉर्मूला है कॉस टू थीटा, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। So that can also be written as cos square theta minus of uh, ये जो sin square theta है, I can also write it as 1 minus cos square theta. So that becomes 2 cos square theta minus 1. तो बेसिकली cos थीटा का एक फॉर्म जो है, वन फॉर्म ऑफ cos कैन एस 2 cos minus 1, है ना। तो ये cos टू थीटा का एक पार्ट है फॉर्मूला का। दिस इज वन पार्ट ऑफ द फॉर्मूला ऑफ cos टू थीटा। ठीक है। एट द सेम टाइम, वी कैन आल्सो, जैसे यहाँ पे जो है ना, आई कैन आल्सो राइट cos टू थीटा साइन के फॉर्म में कभी कंसीडर ओके cos स्क्वायर थीटा, आई थिंक इट्स 1 minus sin square theta, again minus sin square theta, so now that becomes 1 minus 2 sin square theta, ठीक है ना। तो यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू 1 minus 2 sin square theta, है ना, गाइस। ठीक है ना। तो ये एक फॉर्म आ गया cos टू थीटा इक्वल टू, तो दूसरा और एक फॉर्म आ गया cos टू थीटा इज इक्वल टू 1 minus 2 sin square theta। ठीक है। तो ये cos थीटा का और एक फॉर्म है, लाइक cos थीटा कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ sin थीटा, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 1 minus 2 sin square theta। ठीक है ना बच्चों। ओके, तो दीज आर द बेसिक फॉर्मूलाज, है ना। जैसे कि sin टू थीटा cos टू थीटा tan, अब tan टू थीटा डिराइव करना है, ठीक है। तो अभी tan टू थीटा भी वैसे ही tan a प्लस बी का फॉर्मूला लेकर tan टू थीटा डिराइव कर सकते हैं ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया सब लोगों को?
Yes, sir. बस ये जो फॉर्मूला है ना, इसको बस मैं शिफ्ट कर लूंगा। जस्ट गिव मी मिनट। जस्ट गिव मी मिनट, है ना। हाँ, तो यहाँ पे आई कैन जस्ट कॉपी डाउन द फॉर्मूला। दैट sin 2 theta is equal to 2 sin theta into cos theta. Cos 2 theta, I have two representations for cos 2 theta. One is 2 cos square theta minus 1. The other part for cos 2 theta is, again, that is equal to 1 minus 2 sin square theta. ठीक है। Next is, now we can derive, basically we can derive this formula, that is tan 2 theta, है ना। अभी हम वो tan 2 theta वाला फॉर्मूला दे सकते हैं। तो बेसिकली tan 2 थीटा को डिराइव करने के लिए, है ना, वी कैन यूज tan a प्लस बी फॉर्मूला। तो हमारे पास tan a प्लस बी फॉर्मूला है, उसको यूज करके हम tan 2 थीटा फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं ना। आई होप, है ना, बहुत सारे लोगों ने ना ट्राई कर भी लिया होगा, इजंट इट। एज फार एज आई नो, उनमें से काफी सारे बच्चे ना इसको बना चुके होंगे, है कि नहीं। सो tan a प्लस बी जो है, सपोज आई टेक tan 2 थीटा। अब tan 2 थीटा है, I can write it as tan of theta प्लस थीटा। तो हम उसको tan of theta प्लस थीटा लिख सकते हैं ना। तो tan थीटा प्लस थीटा जो है, that is equal to again tan theta plus tan theta whole divided by 1 minus tan theta into tan theta, ना ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। सो implies tan 2 theta क्या है, tan 2 theta is equal to 2 tan theta whole divided by 1 minus tan square theta। तो ये आ गया tan 2 theta का फॉर्मूला। व्हाट इज tan 2 theta? Tan 2 theta can be written as, that is equal to 2 tan theta whole divided by 1 minus tan square theta। ठीक है बच्चों, तो दिस वाज ऑल अबाउट बेसिक फॉर्मूलाज इन ट्रिग्नोमेट्री। दिस वाज ऑल अबाउट बेसिक फॉर्मूलाज इन ट्रिग्नोमेट्री। होपफुली इतना सब लोगों को समझ में आ गया होगा, राइट। क्या ये सबको समझ में आ गया यहाँ तक? Am I audible, students? Yes, sir, you are audible. ओके, थैंक यू, है ना। तो नोट इट डाउन। सो
एवरीवन नोट इट डाउन, राइट? है ना? चलो बच्चों, तो अब जो है ना, हम वी विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज बाइनोमियल थ्योरम, है ना? एक बेसिक चीज है बाइनोमियल थ्योरम, दैट इज जो कि मैथ्स में बहुत बार यूज हो जाता है, फिजिक्स में भी, है ना? जो हम चैप्टर्स पढ़ते हैं बहुत जगह पर ये बाइनोमियल थ्योरम बहुत काम में आता है, ठीक है ना? दैट इज एक बेसिक थ्योरम है बाइनोमियल को थ्योरम का, दैट इज 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n is nearly equal to 1 प्लस nx, है ना? लेकिन कंडीशन ये है, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस nx, है ना? इसका लेकिन कंडीशन ये है, इफ x is less than 1, x is less than 1, ठीक है? अच्छा, ये देखो कैसे होता है, if x is less than 1, मान लो फॉर एग्जाम्पल, है ना, आई विल से दैट 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, where n is an integer, where n is an integer, तो बेसिकली n इंटीजर है ना? तो मैं ये बोल रहा हूँ बाइनोमियल थ्योरम ये बोलता है अगर n इंटीजर है तो ये जो फॉर्मूला है 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx होता है इफ x लेस देन 1। अगर x 1 से काफी छोटा है, अगर x का वैल्यू 1 से बहुत छोटा है ना, देन आई कैन से दैट मतलब 1 प्लस एक्स टू द पावर n, है ना, होल 1 प्लस एक्स होल रेज टू द पावर n इज इक्वल टू x, ठीक है ना? ऐसा कैसे होता है? चलो, है ना, इसको थोड़ा हम लोग, है ना, लेट अस एग्जामिन कि ऐसा कैसे होता है ना, लेट अस फाइंड आउट। तो ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, आई कैन राइट इट एज 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस nx ना। तो मेरा कहने का मतलब है इफ x इज लेस देन 1, ओके नाउ if x is less than 1, अच्छा, लेस देन 1 मतलब लेट से, चलो मान लेते हैं कि x लेट x इक्वल टू, मैं बोलूंगा लेस देन 1 मतलब आई टेक ए फ्रैक्शन 1/10। देखो x अगर 1/10 है तो x स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर हो जाएगा 1/100। तो x मैं बोल रहा हूं कि 1 से काफी छोटा है, तो 1 से छोटा है मतलब फ्रैक्शन है। तो कोई भी फ्रैक्शन का जब हम स्क्वायर लेंगे वो कितना हो जाएगा? कोई भी फ्रैक्शन का अगर स्क्वायर है ना, वो किसके बराबर आ जाएगा? ना, दैट इज इक्वल टू 1/100 आ गया अभी, ठीक है? ओके, सपोज आई टेक अनदर वैल्यू, इसको एग्जाम करने के लिए x इज इक्वल टू 1/20, मैं x का और एक वैल्यू ले रहा हूँ, मतलब 0.05 है ना, 1/20। तो x स्क्वायर क्या होगा? नहीं 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 नहीं, x इज लेस देन 1 मतलब इट्स नॉट नेगेटिव, मतलब इट इज बेसिकली अ फ्रैक्शन, मतलब मैग्नीट्यूड के बारे में बोलो बेटा। इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट द, इट्स ओनली टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है ना? तो मतलब इफ यू टेक x इक्वल टू -3 तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? 3 है ना, ठीक है? तो वैसे उसको नहीं कंसीडर करते हैं ना, वी कंसीडर x लेस देन 1 मतलब वी कंसीडर हियर फ्रैक्शनल वैल्यूज, है ना? ओके, समथिंग, क्या कोई मुझे कुछ पूछ, ओ सॉरी सॉरी, आई थिंक कुछ इको हो रहा है, I think we are kind of getting kind of some echo, right? Okay,
इक्वल टू 150 तो एक्स स्क्वायर कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 1/400। मतलब बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, है ना, वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं। ऑल्दो -3 है लेकिन वैल्यू तो 3 है ना उसका, ठीक है ना। तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट, है ना, x लेस देन 1, है ना, x लाइज बिटवीन 0 and 1, x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, ठीक है। तो इसके क्या हो रहा है, मतलब x अगर मैं फ्रैक्शन ले रहा हूं तो x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का कोई भी फ्रैक्शन का जो स्क्वायर या फिर क्यूब का वैल्यू है वो फ्रैक्शन इटसेल्फ फ्रैक्शन से कम होता है। अगर हम बेसिक है ना रियल मतलब होल नंबर्स, इफ वी कंसीडर होल नंबर्स, अगर हम, है ना, होल नंबर कंसीडर करेंगे बच्चों, ठीक है। सो बेसिकली व्हेन वी कंसीडर होल नंबर्स, आ रहे ना समझ में ना, जब हम होल नंबर्स कंसीडर करते हैं तब क्या होता है, मतलब 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, और वी टेक 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, और वी टेक 4 स्क्वायर इक्वल टू 16। तो ये क्या हो रहा है ना कि होल नंबर का जब स्क्वायर लेते हैं ना तो उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाता है। 4 का स्क्वायर 16, मतलब और 4 गुना हो जाता है ना। 5 का स्क्वायर 25, मतलब 5 का 5 गुना हो जाता है वो। 6 का स्क्वायर 36, तो 6 का 6 गुना हो जाता है वो, है ना, 36, ठीक है। सो इट्स नॉट लाइक दैट फॉर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में अगर मैं 1/5 ले रहा हूं तो उसका स्क्वायर आ रहा है 1/25, और भी कम हो गया, मतलब और 1/5 टाइम्स हो गया, है ना। 1/10 ले रहा हूं तो वो उसका स्क्वायर 1/100 हो गया, मतलब अगेन इट इज गेटिंग लेस, इट्स वैल्यू बिकम्स लेस, ठीक है ना। तो बेसिकली आई कैन से दैट इफ x इज लेस देन 1, if x less than less than 1, then 1 plus x square plus 2x is nearly equal to 1 plus 2x. This x square can be negative, है ना। तो इसमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, implies 1 plus x whole square is equal to 1 plus 2x, है ना, फॉर x लेस देन 1। अगर x का वैल्यू जो है 1 से काफी छोटा हुआ तो 1 plus x होल स्क्वायर क्या आ गया, है ना, 1 plus 2x, है ना। सो वी कैन दैट, तो फिर यहाँ कंक्लूड करते हैं। सो फ्रॉम हियर, तो फिर यहाँ से कंक्लूड दैट, फिर हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, है ना, कैन कंक्लूड दैट 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n इक्वल टू, जो पावर है वो एक का कोएफिशिएंट बन जाएगा 1 प्लस तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थियरम, है ना। फिजिक्स में काफी जगह काम आता है इन टॉपिक लाइक ग्रेविटेशन, इन टॉपिक्स लाइक ग्रेविटेशन, सिंपल थर्मल एक्सपेंशन, ऐसे ना बहुत सारे चैप्टर्स हैं इलेक्ट्रिकल में। जब हम मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे डिजाइन किया जाता है ना, साउंड वेव्स, ठीक है ना। सो डॉपलर इफेक्ट एक्चुअली, so there are a lot of places where problems can be devised where this basic theorem of binomial theorem, this basic theorem called binomial theorem, very simple theorem, है ना, is quite frequently used in problems of these chapters, interference के problems में। interference मतलब दो chapters होते हैं हमारे पास waves के, है ना। 11th में एक sound waves होता है और 12th में wave optics होता है, light waves। तो दोनों में है ना मतलब बाइनोमियल थ्योरम यूज करने वाले प्रॉब्लम्स अभी, है ना, काफी हद तक आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि मैंने बोला और भी चैप्टर्स हैं, जैसे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है जो कि 12th में आता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो कि 11th में आता है ना। और उससे पहले ग्रेविटेशन भी आता है 11th में, बिफोर सिंपल हार्मोनिक मोशन। और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में थर्मल एक्सपेंशन चैप्टर है ना। इन सब चैप्टर्स में ना बाइनोमियल थ्योरम के प्रॉब्लम्स, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स में ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं कुछ टाइप के, है ना, जहाँ पे कि बाइनोमियल थ्योरम जो है ये बेसिक थ्योरम
है ना, मैथ्स का यूज हो जाता है ना जनरल प्रॉब्लम्स में। ठीक है बच्चों, सो होपफुली यहाँ तक सब लोगों को समझ में आ गया आज का जो पढ़ाया गया। बच्चों हमें क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना? Yes, sir. ओके, कैन एवरीवन रिप्लाई मी एट द सेम टाइम, Yes. राइट? और सारे बच्चे नहीं रिप्लाई किए, ठीक है? दीक्षा बेटा समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ओके Yes, sir. ओके देन। तो बच्चों ना, तो दिस इज दैट्स द एंड ऑफ दिस क्लास, है ना? कल हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइंस, ठीक है? ट्रिगोनोमेट्री और ये बाइनोमियल थ्योरम पार्ट खत्म हो गया। कल जो है हम ये कोऑर्डिनेट का पार्ट पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, स्ट्रेट लाइंस, बिफोर वी स्टार्ट बेसिक कैलकुलस। ठीक है बच्चों, चलो थैंक्स अ लॉट। अभिनीत सर, Yes, sir. अभिनीत सर